Hello, dear students. We'll be studying the third chapter from your reader, Honey Suckle, today. And the third chapter is Taro's Reward. It's a Japanese story, it has a moral and a message. Now, Taro is a young woodcutter. He lives with his old parents in a hut on the hillside. And he used to chop wood in the forest all the day. He worked very hard but earned very little. And because of this, he used to remain sad. He wanted so much to meet all the needs of his parents. वो अपने पेरेंट्स को बहुत कुछ देना चाहता था मगर उतना अर्न नहीं कर पाता था बहुत मेहनत करने के बाद भी. Now one evening it so happens that all the family members were sitting in the hut and a strong cold wind was blowing. So suddenly the old man, who was shivering with cold, wished he had a cup of sake to warm his heart and body. जैसे हम लोग गर्मियों में सूप पीते हैं, सूप वेजिटेबल्स का बनता है, इट इज़ लिक्विड इन फॉर्म और बहुत गरम उसको पिया जाता है, उससे विंटर्स में बॉडी को वार्मथ मिलती है. ऐसे ही जापान में होता है सेक. दिस नो ही सेड दैट उसके पापा ने कहा काश मुझे सेक मिल जाता आज पीने के लिए. दिस मेड टैरो वेरी सैड. उसको बहुत ख़राब लगा कि मैं इतना भी नहीं दे सकता अपने पेरेंट्स को. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर एंड अर्न मोर. एंड सेक विच हिज फादर वॉज सेइंग दैट ही वांटेड टू हैव, इट वॉज अ जापानीज ड्रिंक and was very expensive. So next morning he goes early to the forest and he works very hard with his axe. His mouth was dry and his face was wet with sweat. So he was thinking of earning more money to buy sake for his father. Suddenly he hears the sound of flowing water. Being thirsty, he ran in the direction of the sound and he saw a little waterfall behind a rock. So he drank a little water, but it tasted like sake. उसने देखा पानी का झरना है, उसने सोचा पी लेता हूँ क्योंकि वो बहुत थक गया था, पर जब उसने वो पानी पिया तो वो बिल्कुल सेक जैसा टेस्ट लग रहा था. Now Taro quickly filled the pitcher with sake. pitcher मतलब घड़ा जो था उसके पास, आपको जैसा फ़ोटो में दिख रहा है, ठीक है. He filled the pitcher with sake and returned home. His father was delighted to drink the sake and he stopped shivering. Now that afternoon, a woman neighbor came to the hut. The old man offered her a cup of sake. पड़ोसन थी, वो आई तो इसके पापा ने उसे भी सेक पिला दिया. And told her the story of the magic waterfall. Now the woman spread the story throughout the village. उस woman ने जाके सारे गांव में ये बात बता दी कि वो waterfall है, वहाँ पे पानी जैसा दिखता है पर है सेक. Now that evening many villagers came to Taro's hut. They took a sip of the sake and heard the story. And they also planned to get that drink from the magic waterfall. Now next morning Taro started to work even earlier with a large pitcher. अगले सुबह टैरो ने सोचा मैं और जल्दी जाऊंगा और काम करूंगा और बड़ा वाला घड़ा लेके जाऊंगा. But to his surprise, he found that all his neighbors were there near the waterfall, and all of them had come with their jars, pots, and buckets. And one of them drank the liquid. It tasted like plain water. अब जब उन लोगों ने पी कर देखा तो उन्हें लगा अरे ये तो पानी ही है. This is not sake. So this was not any magic drink. The others also tried, and everybody that water tasted like water only. वो किसी को भी सेक जैसा नहीं लगा. वाटर दिख रहा था तो वाटर की ही तरह वो टेस्ट भी कर रहा था. नाउ दे वर एंग्री दैट टैरो हैड मेड अ फूल ऑफ देम. उन्हें लगा टैरो ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया है, झूठ बोला है कि यहाँ से मैं लेकर आया पानी और वो सेक बन गया. सो दे लुक्ड फॉर टैरो टू ड्राउन हिम इन द वाटरफॉल. वो टैरो को ढूंढने लगे कि इसे इसी झरने में हम लोग डुबा के मार देंगे. बट टैरो हैड वाइजली स्लिप्ड बिहाइंड अ रॉक. He was saved and the villagers went back to their homes. Now Taro came out of his hiding place and he tasted the liquid again. It was the same fine sake, the tasty drink. अब सोचिए जब इतने सारे लोगों ने पी कर देखा तो सबको पानी मिला पीने के लिए.
उस झरने में से। मगर टैरो जब छुप गया था, सब लोग चले गए और फिर वो वापस निकल के आया, उसने अकेले पी कर देखा तो वो फिर से सेक जैसा था। सो ही रियलाइज दैट द वाटरफॉल वॉज फेवरिंग हिम। वो समझ गया कि ये वाटरफॉल जो है ये या तो मुझे पसंद करती है या मेरे लिए ही सेक इसमें से निकलता है, बाकी सब कितनी भी कोशिश कर लें सबको वाटर ही मिलेगा। Now the Emperor of Japan heard the story of Taro and his magic waterfall. He rewarded Taro with gold pieces for being good and kind. And the emperor did this to encourage other children who respect and obey their parents. So this is the story of Taro. It follows certain question answers. In the B exercise on page number 34, ये आपके लिए मार्क करी हुई है। तो आप जब कॉपी में इसे करेंगे, फर्स्ट टैरो अर्नड वेरी लिटिल मनी बिकॉज सिर्फ सही ऑप्शन लिख दीजिएगा। थर्ड, द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो। ठीक है, ये तीनों में ये करना है। देन यू कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 35। हेयर ऑल्सो द राइट ऑप्शन हैज़ बीन मार्क्ड। तो आप कॉपी में इसको ऐसे ही करेंगे। देन सी, यू हैव टू फाइंड 2 words which can be put in pairs, जो दोनों एक जैसे साउंड करते हों। तो यहाँ पर मैंने नंबर किया है वर्ड्स को। जैसे नंबर 1 देखिए, नंबर 1 पे यंग है और नंबर 1 पे लंग भी है और दोनों एक जैसे साउंड करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में लिखा है यंग और लंग, ऐसे ही आप बाकी के लिए लिखेंगे। लाइक नंबर 6 पे साउंड भी है और नंबर 6 पे राउंड भी है। तो फर्स्ट यू विल राइट साउंड, डैश करके यू विल राइट राउंड। ठीक है, ऐसे सारे आप 8 पेयर्स लिखेंगे। देन यू हैव fill in the blanks. Fill in the blanks has been done for you. You will do these in your copy, all the blanks in page number 36. और जो ये क्वेश्चंस हैं फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 5, इसके आंसर्स ये आपको दे दिए गए हैं। आंसर 1 and 2, आंसर 3, 4 and 5. Now we come to the next chapter, that is a poem, and the poem's name is The Quarrel. Now it is common for brothers and sisters to quarrel and fight among each other. आप भी लड़ते होंगे अपने भाई बहनों से, एंड जनरली छोटे बच्चों में कोई रीज़न नहीं होता है लड़ने का। उसने मेरी पेंसिल ले ली, उसने मेरी टॉफ़ी खा ली, छोटी छोटी बातें होती हैं। और ये लड़ाइयाँ बहुत लंबी नहीं चलती हैं। आज आपने लड़ा, गुस्सा हुए, हो सकता है एक दूसरे की पिटाई कर दी या मम्मी पापा से पिटाई पड़ गई और अगले दिन सब ठीक हो जाता है। सो द पोएट रिकॉल्स एन इंसिडेंट वेयर ही क्वारल्ड विद हिज ब्रदर एंड इट वॉज अपॉन एन इशू विच वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। बहुत छोटी सी बात थी। नाउ ही हैज़ फॉरगॉटन वॉट इट वॉज। द स्टार्ट वॉज माइल्ड और सॉफ्ट, मतलब जो लड़ाई की स्टार्टिंग थी वो बहुत छोटी सी स्टार्टिंग थी, हल्की फुल्की बात से। बट अ वॉर ऑफ वर्ड्स वॉज फॉलोड बाय अ शो ऑफ टेम्पर। मगर वो छोटी सी बात बहुत बड़ी हो गई, बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगी और बहुत ज़्यादा दोनों एक दूसरे को बोलने लगे और गुस्सा करने लगे। एंड द क्वारल टुक अ सीरियस टर्न। बोथ ट्रेडेड चार्जेस एंड ब्रोक ऑफ। दोनों ने एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी, इतना ज़्यादा लड़ाई हो गई। एंड बोथ क्लेम टू बी राइट। दोनों कह रहे थे कि मैं सही हूँ, वो कह रहा था वो सही है। एंड द पोएट हाउएवर वॉज कन्विंस्ड दैट हिज ब्रदर वॉज रॉन्ग। मगर पोएट यही कहता है कि मुझे ये मालूम था कि वो गलत है, मैं गलत नहीं था, वो गलत था। सो द पेटी क्वारल टुक सच अ सीरियस टर्न दैट दे हेटेड ईच अदर एंड द गेम स्टॉप्ड। तो जो वो खेल खेल रहे थे वो तो रुक गया और वो दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करने लगे। और एंड बोथ फेल्ट लोनली एंड बोर्ड विद नो अदर प्लेमेट्स। अब लड़ तो लिए हैं मगर अब कोई है भी नहीं खेलने के लिए। भाई बहन एक दूसरे के साथ ही तो खेलते हैं जब आप बाहर नहीं जा सकते फ्रेंड्स के साथ, तो अब कोई है नहीं खेलने के लिए। नाउ अ फ्यू आवर्स हैव पास्ड बाय and as the sun climbed down the sky, the light faded and it was evening. अब दिन बीत गया, इवनिंग हो गई and the poet's brother could not bear his boredom anymore. तो जो पोएट का भाई है उससे और मतलब वो बहुत बोर हो रहा था, कोई खेलने के लिए नहीं था, भाई से लड़ लिए हैं। तो ये जो पोएट का भाई था he became bored and he walked up to the poet to make peace.
और वो वापस आया अपने भाई के पास, पोएट के पास, और ताकि वो लड़ाई जो है वो ख़त्म हो जाए. He thumped or gave a gentle pat on the poet's back and felt sorry for the quarrel. So जो पोएट का भाई था वो आया कि ये लड़ाई ख़त्म करते हैं, और उसने अपने भाई के कंधे पे हाथ रखा एंड ये बोला कि ही वॉज सॉरी और चलो लड़ाई को ख़त्म करें. सो ही डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज इन द रॉन्ग, और उसने एक्सेप्ट कर लिया पोएट के भाई ने कि वो गलत था. द पोएट रेडिली मेड अप विद हिम. He also accepted that it wasn't his brother's fault and he was in the right. अब जब माफ़ी मांग ली है, पोएट ने भी उसकी माफ़ी को सुन लिया और माफ़ी को एक्सेप्ट कर लिया. अब जब माफ़ी मांग ली है, पहले जब लड़ाई हुई थी तो पोएट को लग रहा था मैं सही हूँ, उसके भाई को लग रहा था मैं सही हूँ, मगर अब जब माफ़ी मांग ली है तो पोएट कहता है कि वो शायद सही कह रहा था, कि शायद वही सही था, और पोएट का भाई कहता है कि नहीं मेरा भाई सही था. तो यही होता है जनरली कि जब लड़के आप वापस पैचअप कर लेते हैं तब आपको लगता है कि नहीं दूसरा ही पर्सन सही था, हम ही ज़्यादा लड़ाई कर रहे थे, या दूसरा पर्सन बेटर था, हम गलत तरीके से बिहेव कर रहे थे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम क्वारल. It has certain questions which follow. Question 1, 2 and 3. The third question, describe a recent quarrel that you have had with your brother, sister or friend. How did it start? What did you quarrel about? And how did it end? ये 4 questions हैं एक तरह से, जिनको मिलाकर आपको एक आंसर लिखना है कि रिसेंटली अगर आपके भाई बहन या दोस्त के साथ कोई लड़ाई हुई हो तो उसके बारे में लिखना है. कैसे शुरू हुई, क्या बात हो गई थी, किस चीज़ पर आप लड़ रहे थे, और वो लड़ाई ख़त्म कैसे हुई, ये अब आपको अपने वर्ड्स में लिखना है. आई कैन नॉट गिव एन आंसर फॉर दिस. फाइन. एंड द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, सेकंड क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं. ये आंसर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं. दिस यू विल राइट इन योर कॉपी. यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ ऑल द 3 क्वेश्चंस इन योर कॉपी. फर्स्ट और सेकंड आपको दे दिया है, थर्ड आपको खुद से लिखना है. फाइन. दिस इज़ ऑल.